بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 7۔ صدابین کی کچھ لڑکیاں چند معمر مرد اور عورتیں بچ گئی ہیں۔ بستی کے 4 گھروں کے اندر تہہ خانے تھے، وہ لوگ ان تہہ خانوں میں ابھی تک محفوظ ہیں۔ میں جب تباہ شد صدابین کا جائزہ لے رہا تھا تو وہ لڑکی تہہ خانے سے نکل کر مجھے ملی تھی۔ کیا تم وہ تہہ خانہ جانتے ہو جہاں سے وہ لڑکی نکلی تھی؟ میں جانتا ہوں میرے آقا، آؤ میرے ساتھ۔ ہشام، تم مشرق کی طرف صدر دروازے پر جا کر فوج کا نظم و نسق سنبھال لو، میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ابو نواس اور حوازن بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں شمال کی طرف اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر دو۔ تاریکی میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عمیر، ابو نواس اور حوازن اس جاسوس کے ساتھ صدابین آئے۔ وہ جاسوس عمیر کو کسی تہہ خانے کا پتہ بتانے ہی لگا تھا کہ عمیر کی نظر ستاروں کی بجلی روشنی میں ایک بوڑھی شخص پر پڑی جو ملبے کے اندر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمیر جب اس کے نزدیک ہوا تو اس نے دیکھا وہ بوڑھا احمد تھا، وہی احمد جس کا گھر اریتا کے گھر کے سامنے تھا اور جس نے عمیر اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے والے تاتاریوں کی لاشیں ٹھکانے لگائی تھی۔ عمیر نے اسے پکارا، چاچا احمد، کیا تلاش کر رہے ہو؟ احمد کھڑا ہو گیا اور خوشی دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہا، تم آ گئے بیٹا، اریتا نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تھا، وہ دن رات تمہارا انتظار کرتی رہی ہے اور پوری رات تمہارے آنے کی دعائیں مانگا کرتی ہے۔ شاید قدرت اس کی دعائیں قبول کر چکی ہے، پر تم تو صرف اپنے ان 3 ساتھیوں کے ساتھ آئے ہو۔ نہیں چاچا، میں اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوں، ہم نے تلم کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تاتاری ایک بار کھلے میدان میں ہم سے مقابلہ کر کے پسپا ہو چکے ہیں، اب میں ان پر باقاعدہ حملہ شروع کرنے والا ہوں۔ احمد ایک طرف لپکا، ٹھہرو، میں اریتا کو تمہاری آمد کی اطلاع کرتا ہوں، وہ بے حد خوش ہوگی۔ احمد رک گیا اور دکھ سے کہا، پر تمہیں ایک خبر سن کر دکھ بھی ہوگا۔ وہ کیا؟ اریتا کی ماں کو تاتاریوں نے قتل کر دیا ہے اور وہ جفاکش لڑکی اس دنیا میں اب اکیلی رہ گئی ہے۔ عمیر کا سر غم سے جھک گیا تھا۔ احمد پھر آگے بڑھا، ملبے میں سے گزرتا ہوا ایک جگہ رکا، نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا، وہاں تہہ خانے کو جانے والا راستہ نمودار ہوا تھا۔ احمد نے سوراخ کے اندر موڑ لے جاتے ہوئے زور سے کہا، اریتا بیٹی، سب کو ساتھ لے کر باہر آ جاؤ، عمیر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے اور تلم کا محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ احمد پیچھے ہٹا اور دوبارہ عمیر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اریتا تہہ خانے سے نکلی اور اس کے پیچھے بے شمار عورتیں تہہ خانے سے نکل پڑی، ان میں سے جوان کم، ادھیڑ عمر زیادہ تھی۔ ستاروں کی بلکچی روشنی میں عمیر نے اریتا کی طرف دیکھا، اس کے لباس میں سادگی کے باوجود پرکاری اور نفاست تھی۔ اس کے چہرے پر ماضی کے ایذاؤں، تکلیفوں کے منظر نظر آتے تھے، اب اس کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس تاریکی بھری رات میں جبکہ آسمان سے شبنم بڑی تیزی سے گر رہی تھی، اریتا عمیر کے سامنے کھڑی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ کچھ نہ کہہ پائی، اس کی زبان جیسے بند دی گئی ہو۔ عمیر جو اس کے لیے روشنی کا مینار تھا، وہی عمیر جسے اس نے ہمیشہ اپنے دل کو آسمان کے ستاروں میں دیکھا تھا، جو شاہراہ حیات کے چرواہے پر کھڑا اسے ہمیشہ پکارا کرتا تھا، جس کے انتظار میں اس نے پہروں جلملاتے اور ڈوبتے ستاروں سے باتیں کی تھی، وہ اس عمیر سے کچھ نہ کہہ پائی جس کے وجود سے اس کے دل کی قندیلیں روشن تھی۔ اس کے دل اور ذہن میں سنتراہ کاری شروع ہو گئی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور اس کا استقبال کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو پرگٹتے نیچے کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ عمر اسے دیکھے جا رہا تھا پر وہ تو اسے آہوئے حرم کی طرح خاموش کھڑی نظر آ رہی تھی۔ پھر عمر کی آواز سنائی دی، اریتا، مجھے تمہاری ماں کے مرنے کا دکھ ہوا۔ اریتا رو پڑی، اس کے آنسوؤں میں شکوں کی ایک دنیا آباد تھی اور دل زور زور سے دھڑک کر عمر سے کہہ رہا تھا، تم میرے ہو، جب تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی غم اور دکھ نہیں۔ آنسو پوچھ کر اریتا جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی اور گردن کے قریب سے عمر کی بات پکڑ کر زور سے کھینچتے ہوئے وہ بوڑھیا غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ تم کیسے بھائی ہو جو تاتاریوں کے ہاتھوں اپنی مسلم بہنوں کی عظمتیں نہیں بچا سکتے؟ تم کیسے مسلمان اور موت کے مسافر ہو جو اپنی ماں اور بہنوں کی پکار پر بر وقت لبیک نہیں کہہ سکتے؟ بوڑھیا نے زور سے عمر کی بات پکڑ کر پھاڑ دی تھی، پھر اس کے ذرہ پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بیچاری روتے ہوئے ہچکچوں میں کہنے لگی، تم کیوں اس وقت یہاں نہ تھے؟ تم کیوں دیر سے آئے ہو؟ کاش تم اس وقت یہاں ہوتے، تم دیر سے جاگے ہو۔ بڑھیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
उमिर ने भीगी पलकों के साथ गर्दन झुका रखी थी। अरीता आगे बढ़ी। बुढ़िया के हाथ से उमिर की बाह छुड़ाकर उसने बुढ़िया को अलहदा करते हुए अपने बहते आंसुओं में उमिर से कहा, यह अहमद चाचा की बहन है। तातारियों ने उसके दोनों बेटों को उसके सामने कत्ल किया और उनका खून एक गिलास में भरकर उसे पीने को कहा। जब उसने पीने से इनकार किया तो उसका मुंह खोलकर उसके बेटों का खून जबरदस्ती उसके मुंह में उंडेल दिया। अपने बेटों की वहशियाना मौत पर यह बदहवास हो चुकी है। क्या मैं उम्मीद रखूं आप इसके सुलूक पर अपना दिल मैला नहीं करेंगे? उन्हें ने कोई जवाब न दिया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखों में आंसू चमक रहे थे। बुढ़िया अभी तक हिचकियां लेकर रो रही थी। अरीता अपने आंसू पोंछने लगी। उमर के पहलू में खड़े अबू नवास ख्वाजन अपनी भीगी पलकों के साथ उस बुढ़िया की तरफ देख रहे थे। सामने खड़ी सारी औरतें और बूढ़ा अहमद सब रो रहे थे। अचानक उमर ने अपना सर एक झटके से ऊपर उठाया और धारती हुई आवाज में अरीता से पूछा, अरीता, किसने इसके बेटों का खून उसके मुंह में उंडेल दिया? अरीता ने उस बुढ़िया को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, किला तलम के तातारी सिपे सालार और उसके छोटे भाई ने। उमर की हालत उस वक्त उन आंधियों जैसी थी जो रेत की तोड़ दे उठा कर ले जाती है और आबादियों को दफन करके रख देती है। उसने सर घुमाया और पहले जैसी भयानक आवाज में कहा, अबू नवास और वाजन, ये हुक्म हर सिपाही के कानों कान पहुंचा दो कि तिलम के तातारी सालार और उसके भाई को हर सूरत में जिंदा गिरफ्तार किया जाए। जवाब में उन दोनों के सर झुक गए थे। उमर रुका, फिर अहमद से कहा, अहमद चाचा, क्या यहाँ ऐसा कोई और तहखाना भी है? अहमद अपनी आंखें पूछता हुआ उमर से करीब हुआ। यहाँ ऐसे 3 और तहखाने भी हैं जिनमें बस्ती के कुछ मर्द छुपे हुए हैं। तो फिर जाकर उन्हें भी ये खुशखबरी सुना दो कि तिलम का मुआसरा हो चुका है। वो अब आजादी से बाहर निकलकर घूम फिर सकते हैं। उमर जब अपने घोड़े पर सवार होने के लिए मुड़ा तो अरीता तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और धड़कते हुए दिल से कहा, ठहरिए। उमर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। अरीता ने अपनी तेज धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जाकर जंग की बाकायदा इब्तिदा करूंगा। क्या मैं जंग में शरीक न हो सकूंगी? मैं अगर लड़ नहीं सकती तो अपने भाइयों की मरहम पट्टी तो कर सकती हूँ। मेरी तरह और बहुत सारी औरतें भी एक कार्य खैर अंजाम दे सकती है। उमर ने उसकी बात काटते हुए कहा, आज की रात मैं सिर्फ उन्हें बुरी तरह जंग में मसरूफ रखूंगा। किले में दाखिल होने की कोशिश में कल सुबह से शुरू करूंगा। आज की रात मैं किसी को वहां आने की इजाजत न दूंगा। कल सुबह से जो भी लश्कर की खिदमत के लिए आएगा उसे मना नहीं करूंगा। उमर अपने घोड़े पर सवार हुआ और तिलम की तरफ रवाना हो गया। अबू नवास और वाजन उसके पीछे पीछे थे। किले के सदर दरवाजे के पास आकर उमर घोड़े से उतरा। 3 सिपाही भागते हुए आगे बढ़े और उनके घोड़े पकड़कर पीछे ले गए। सिपाही खामोशी से दमदमों की आड़ में बैठे हुए थे। उनके पीछे मोटी लकड़ी के पहियों वाली गाड़ियां खड़ी थी जो चारों तरफ से बंधी थी और उनके अंदर अनगिनत सुराख थे जिनमें से सिपाही अंदर बंद होकर दुश्मन पर तीरंदाजी कर सकते थे। उन लकड़ियों के छप्पड़ों के नीचे जरा दूर जहां किले से बरसाई जाने वाली तीरें ना पहुंच सके वहां लश्कर के घोड़े खड़े थे और वही कुछ सिपाही सामान्य रसद के लिए खीमा नसब कर रहे थे। उमर एक दमदमे के पीछे आकर बैठ गया और हिशाम से कहा, हिशाम, तुम अपने मुहाज पर चले जाओ। अबू नवाज और वाजन, तुम दोनों एक बार किले के गिर्द चक्कर लगाओ और अपने सिपाहियों से कहो, जब मैं फिजा में जलते हुए परों का तीर छोड़ूंगा किले में आतिशी तीरों की बौछार शुरू कर दे। हत्तल वसी कोशिश करें कि तीर किसी सिपाही को हदफ बनाकर चलाया जाए। फजर की नमाज के बाद जब मेरी तरफ से तकबीरें बुलंद हो और नकारें बजे तो बंद झगड़ों में पूरी कुव्वत से किले पर हमला कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कल सुबह का सूरज हम तिलम के अंदर लड़ता हुआ देखे। हिशाम अपने मुहाज पर चला गया। अबू नवाज और वाजन भी वहां से उठे और सिपाहियों को उमर के अहकाम पहुंचाने रवाना हो गए थे। पूरी रात दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीरों की बारिश होती रही। इस्लामी सिपाह ने बारी बारी फजर की नमाज अदा की और अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर फतह और नुसरत की दुआएं मांगी। जब सारा लश्कर नमाज से फारिग हो चुका तो उमर के मुहाफिज दस्ते के तौर पर लड़ने वाले सिपाहियों ने उमर की तरफ इशारा किया। उमर के इशारे पर बैक आवाज होकर कई बार तकबीरें बुलंद की, जिसके जवाब में तिलम के चारों तरफ अल्लाह अकबर की रूह फिजा आवाजें गूंजने लगी। फिर सदर दरवाजे के सामने जहां उमर, अबू नवास और वाजन थे, एक साथ कई नक्कारे बज उठे और जलते परों का एक तीर फिजा में छोड़ा गया। सिपाहियों की आधी तादाद उठकर लकड़ी के छकड़ों के किले की तरफ खींचने लगी और आधे सिपाही दमदमे की ओट में बैठे किले पर तीरों की बारिश करते रहे। झगड़ों को धकने वाले सिपाही झगड़ों की ओट में थे, लिहाजा वो तातारी तीरों से महफूज थे। झगड़ों को किले से बिल्कुल करीब ले जाने के बाद सिपाही तीरों से भी भरे हुए उन छकड़ों में महफूज होकर बैठ गए। जो तातारी सिपाही किले के बुर्जों से निकालकर बाहर तीर बरसाने की कोशिश करता
झगड़ों में बैठे सिपाहियों के तीर उनका जिगर चीर देते और वो किले की फसील से बाहर आ गिरते। सिपाहियों से भरे हुए 10 छकड़े किले के सदर दरवाजे के सामने रुक गए। उनकी कमान अबू नवास को कर रहा था। उमेर और हुआजन एक ही झगड़े में थे। उनके साथ 15 सिपाही भी थे और ये झगड़ा सदर दरवाजे की दाएं तरफ आकर रुक गया था। उमेर हुआजन छकड़े से निकलकर ढालों के ओट में फसील के करीब आए और अपनी कमंदे किले के बुर्ज पर फेंके। उनके पीछे पीछे अनगिनत सिपाही किले पर अपनी कमंदे फेंक चुके थे। उमर और हुआजन अब बड़ी तेजी से अपने अपने कमंद के जरिए फसील के ऊपर चढ़ रहे थे। बुर्ज के ऊपर से जो भी बाहर निकलकर उन पर तीर बरसाना चाहता, झगड़ों के अंदर से और दमदमों के पीछे से उन पर तीरों की बाढ़ आती, वो या तो तीरों से छेद कर नीचे गिर जाते या बुर्ज के ओट में हो जाते। उमेर और हुआजन की तरफ देखते हुए बहुत से सिपाही कमंदों के जरिए किले की फसील पर चढ़ने लगे थे। फसील पर चढ़ते ही उमेर और हुआजन को वहां 10 तातारी सिपाहियों का सामना करना पड़ा था। उन दोनों ने अपनी पीठ मिलाई थी और बड़ी बेजिगरी से मुकाबला करते हुए अपने लिए खड़ा होने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। इतनी देर तक उनकी सिपाही भी फसील पर चढ़ आए। लम्हा ब लम्हा उस बुर्ज पर तातारियों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन जब उमेर और हुआजन ने अपने साथियों के साथ टूटकर हमला किया तो तातारियों को पीछे धकेलकर उस बुर्ज पर कब्जा करने में कामयाब हो गए थे और अब वो कमिंदों के जरिए अपने नए आने वाले सिपाहियों के लिए जगह पैदा करने की खातिर आगे बढ़कर तातारियों पर हमलावर हुए। किले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की खबर आग की तरह फैल गई थी कि सदर दरवाजे के एक बुर्ज पर मुसलमान कब्जा कर चुके हैं। लिहाजा तातारी फौजों का सैलाब उस बुर्ज की तरफ उमड़ा। किले का तातारी सालार चीख चीख कर उस बुर्ज को मुसलमानों से छीन लेने के अहकाम जारी कर रहा था। उमेर और हुआजन जो अपने साथियों के साथ अब काफी आगे बढ़ गए थे, रुकने पर मजबूर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही से लड़ने के लिए 20-20 तातारी उमड़ चल आ रहे थे। एक मौके पर जब उन तातारियों का ज्यादा दबाव पड़ा तो पसपा होना शुरू हो गए, हत्ता कि तातारी उन्हें धकेलते हुए उस बुर्ज के पास ले आए जहां से उन्होंने पेशकदमी शुरू की थी। अचानक फसील पर चढ़ने वाले मुसलमानों ने अंधाधुंध तातारियों की बढ़ती हुई अलगार पर तीर बरसाए और इस तरह एक बार फिर तातारियों के कदम रुक गए। इस मौके पर उमेर की बुलंद आवाज गूंजते हुए आवाज आई और अपने सिपाहियों से मुखातिब हुआ, मेरे बहादुर और निडर तुर्को, जाबाज और सरफरोश बर्बरों और मेरे हिजाज के जानिसार सारबानों, अपनी रूह की गहराइयों से धारते हुए तकबीरें बुलंद करो और तातारियों के सरों पर मौत बनकर खेल जाओ। आज तुरंत तुम्हारा है। इस हर बुर्ज पर, हर दीवार और हर सुतून पर तातारियों के लिए फना की तहरीरें शब्द करते जाओ। आंधी और तूफान बनकर आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है। सिपाहियों ने कुछ इस तरह तकबीरें बुलंद की जैसे बेचैन शरारों का चूंका देने वाला खुरोश, फिर उन्हें भड़कती हुई आग की तरह उंडेल शुरू कर दिया। वो हमलावर होते हुए इस तरह तातारों में घुसते चले गए थे जिस तरह लोमड़ियों की भेंट में भेड़िए घर्राते हुए घुस जाते हैं। फिजा की तारीकी अब खत्म हो रही थी और सुबह के आसार पैदा हो रहे थे। उमेर और हुआजन अपने साथियों के साथ तातारियों को दूर तक धकेलते चले गए थे। उनका रुख अब सदर दरवाजे की तरफ था, लेकिन वहां इस कदर तातारी सिपाही जमा हो गए थे कि दरवाजा खुलना मुश्किल हो गया था। दरवाजे के करीब जाकर उमेर और हुआजन ने एक साथ तकबीर बुलंद की और उसके जवाब में किले से बाहर सदर दरवाजे के पास अबू नवाज ने अपनी गुर्राती हुई आवाज में तकबीर बुलंद करके अपने मुस्तैद होने का इशारा किया था। उमेर और हुआजन अपने साथियों के साथ सामने आने वाले तातारियों को काटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। अचानक एक तेज आहिनी नोक का तीर सरसराता आया और उमेर के जर्रा फाड़ कर उसकी पसली में पुष्ट हो गया, लेकिन उस वक्त तक उस दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उमेर दरवाजा खोलने के लिए झुका, उसकी पसली में अभी तक तीर पुष्ट था और वहां से खून बहने लगा था। इस मौके पर हुआजन उसे अपने ओट में लेकर बड़ी तेजी से तलवार चला रहा था। उमेर ने एक झटके के साथ दरवाजा खोल दिया और अबू नवास की सरकर्दगी में मुसलमान सिपाही रेली की सूरत में उस तरह किले के अंदर दाखिल हुए जिस तरह कोई आतिशी मुवाद जमीन का सीना चाक करके तबाही की सूरत में निकल पड़ता है। अब चारों तरफ से मुसलमान सिपाही सिमट कर सदर दरवाजे के रास्ते किले में दाखिल होना शुरू हो गए थे। उमर ने फिर तलवार संभाल ली, पिछले से तीर निकालकर उसने फेंक दिया था। खून की एक तेज धार उसके कपड़ों पर कई सुराख लकीरें बनाती हुई जमीन पर गिरने लगी थी। उमर ने कोई परवाह न की और किले में दाखिल होने वाले अपने सिपाहियों के दोष बदोश बड़ी तेजी से लड़ने लगा था। कुछ अरब, तुर्क और बर्बरी सिपाहियों उमर को महफूज करने के खातिर उसके गिर्द घेरा बनाकर लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उमर बार बार उनका एक घेराव तोड़कर नए अंदाज और अनोखे वलवले के साथ तातारियों पर हमलावर हो रहा था। वाजन ने बेताब होकर उमर को पुकारा था, मेरे आका रुक जाइए, आपका जख्म खतरनाक है। जब उमर भी फिर भी ना रुका और लड़ता लड़ता आगे बढ़ा तो वाजन लड़ते लड़ते जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जाओ उमर रुक जाओ।
इतने में शैबान अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ किले में दाखिल हुआ और परेशानी में वाजन से पूछा, क्या हुआ उमेर को? वाजन ने लड़ते लड़ते जवाब दिया, उमेर को संभाल लो, शैबान वो जख्मी है। शैबान अपने जर्राहों के दस्ते के साथ लड़ता हुआ बड़ी तेजी से उमेर के करीब होने लगा। हिशाम जब अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ किले में दाखिल हुआ तो उसने देखा किले के बुर्जों पर पहरा देने वाले तातारी सिपाही बड़ी तेजी से किले के अंदर उतरकर मुसलमानों से लड़ने लगे हैं। वो वही है। वापस मुड़ा और सदर दरवाजे के दोनों तरफ से जो मुसलमान सिपाही सिमट कर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे उसने उन्हें वही रोक दिया और किले पर कमंदों के जरिए चढ़कर पुष्ट की तरफ से तातारियों पर हमला करने का हुक्म दे दिया। आन की आन में और साथ की साथ में सिपाहियों ने कमंदें फेंक दी और किले पर चढ़ने लगे। उनके साथ हिशाम भी एक बुर्ज पर कमंद फेंक कर ऊपर जा रहा था। ऊपर जाकर हिशाम ने सिपाहियों को मुनज्जम करके किले के चारों तरफ फैला दिया। उन्होंने देखा कि उनके साथी सिपाही उमेर, अबू नवास और वाजन की सरकर्दगी में शहबाज सी तेजी उकाबों की तरह दुश्मन सिपाहियों पर झट पड़े थे। हिशाम के इशारे पर किले के ऊपर चढ़ने वाले सिपाहियों ने एक साथ वलवला अंगेज तकबीर बुलंद की और पुष्ट की तरफ से तातारियों पर हमलावर हुए। अब तातारी अपने आप को बचाने के खातिर लड़ रहे थे। जंग जब जोर पर थी, उमेर की आवाज गूंजी, मेरे आफाक गिर साथियों, आफताब तुलू होने वाला है। बेरोक आंधी और बेतहाशा कुव्वत बनकर हमला करो। दुश्मन को कमजोर खास के तिनकों की तरह अपने पांवों तले मसल कर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा इस्तकबाल इस किले की गिर्द फिजा की तारीकियों ने किया था। अब तुम एक फातेह के हिस्से से थोड़ी देर बाद तुलू होने वाले आफताब का इस्तकबाल करोगे। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आज तिलम तुम्हारा है। उमेर जब खामोश हुआ तो अबू नवास और वाजन धारते हुए दुश्मन पर एक नए वलवले के साथ हमलावर हुए और उनकी कमान में लड़ने वाले सिपाही अपने चेहरों पर मलकूती मुस्कुराहट लिए बड़ी तेजी से खाक और खून का खेल शुरू कर चुके थे। ऐसी जज्बे पुष्ट की तरफ से हमला करने वाले हिशाम और उसके सिपाहियों में पैदा हो गया था। तातारी सिपाही अब आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगे थे और मौत के मुसाफिर इस तेजी से आगे बढ़े थे जैसे फूस में लगी हुई आग या बुलंदों से गिरती हुई कोई तेज आग हो। जो किला तलम का तातारी हकीम एक बुलंद शह नशीन पर खड़ा अपने सिपाहियों के हौसले बढ़ा रहा था। उसके साथ उसका एक नायब भी था। उमेर लड़ता हुआ उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। शहबान अपने जर्राहों के दस्ते के साथ उमेर के करीब आकर घोड़े से उतरा और उमेर को सहारा देने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे आका आप जख्मी हैं, मेरे साथ आइए। उमेर ने अपना झड़िया लिया और तेज निगाहों से शहबान की तरफ देखते हुए कहा, शहबान, मेरा जख्मी होना इतना अहम नहीं। तुम अपने जर्राहों के साथ अपने लश्कर के पीछे चले जाओ और जख्मी होने वाले सिपाहियों को फौरन तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। मेरी फिक्र ना करो, ये जख्म मेरी मौत का सबब नहीं बन सकता। मैं जिंदा हूं और अपने रब के फजल से जिंदा रहूंगा। अचानक उमेर कहते कहते रुक गया। उसकी निगाह शहबान के घोड़े पर पड़ी थी। वो एक जुस्त के साथ घोड़े पर सवार हो गया और लड़ता हुआ आगे बढ़ा और तातारी हाकिम के दरमियान कुछ फासला कम किया। घोड़े के साथ बंधी हुई कमंद खोली। कुछ सोचते हुए अंदाजा लगाकर कमंद के कुछ बल खोले, हाथ को फिजा में लहराया और कमंद फेंकी। कमंद तातारी हकीम की गर्दन पर जाकर फंसी। उमेर ने फौरन घोड़े को मोड़ा और उसे दरवाजे की तरफ सर पर दौड़ा दिया। कमंद में फंसा हुआ तातारी हकीम जमीन पर बड़ी तेजी से घसीटता जा रहा था। हाकिम को उस जगह से निकालकर जहां अभी तक उसके सिपाही लड़ रहे थे, उमेर ने घोड़े को रोक दिया। जंदीक मारकर घोड़े से उतरा। हाकिम के गले से कमंद खोली, उसे उठाया और गर्दन दबोच कर घोड़े के पास लाया। एक बार फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और किले के कमांडर को अपने साथ बिठा लिया और घोड़े को दोबारा वहां लाया जहां जोरों पर जंग हो रही थी और उसे अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद किया और अपनी पूरी आवाज से चिल्लाते हुए तातारी सिपाही को मुखातिब करते हुए कहा, तिलम के तातारियों, तुम्हारा सालार गिरफ्तार हो चुका है। तुम्हारा लड़ना बेसूद है। हथियार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। याद रखो, हमसे लड़ना बेसूद है। अगर तुम लोग लड़ते रहे तो भी मेरे साथी तुम्हारे जिस्मों को यूं चीर देंगे जिस तरह लक्कड़हार आरी से गीली लकड़ी को चीर देता है। तातारियों ने चौंक कर अपनी गिरफ्तार हाकिम की तरफ देखा। फिर उनमें से कुछ हथियार डालने लगे और कुछ भागकर पनाहगाह तलाश करने लगे। अबू नवास, वाजन और हिशाम जाबिर की सरकर्दगी में मौत के मुसाफिरों ने उनका कत्लेआम शुरू कर चुके थे। उमेर ने फिर चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों से कहा, इनमें से एक भी जिंदा ना बच सके। मौत के मुसाफिरों की तलवारें फिजा में बड़ी तेजी के साथ अब डूब रही थी। वो किले के अंदर तातारियों के दिलों को दहला देने वाली जिगर दोस्त चीखें बुलंद हो रही थी। दूर मशरिकी उफुक पर तुलू होने वाले सूरज ने जब अपनी पहली और सुनहरी किरण किले में फेंकते हुए किले के अंदर झांका तो उसने देखा जालिम तातारी जंग में पीठ दिखाकर पसपा हो चुके थे और मौत के मुसाफिर एक फातेह की हैसियत से उनका ताकुब करके उन्हें अपनी चमकती हुई तलवारों से नाजुक और कच्ची टहनियों की तरह काट रहे थे।